I'd also like to say, to keep this more spontaneous, my questions will be directed to one or two specific people, panelists. If anybody wants to jump in with additional point whose name I have not mentioned, is absolutely free to do that. Please, sir. Just to add a point in that, so far as TDS provisions is concerned, we have section 51 of Central GST Act with us, जो ये बोलता है कि if the taxable value of supply exceeds 2,50,000 rupees, then the TDS shall come into the picture, and that is 2 at the rate of 2%, as my co-speaker or co-panelist has mentioned about it. So that is also a rider with this, because this provision has to come into the light as per section 51. So 51 ऑपरेट ही तभी होता है जब 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का माल बिक रहा है. तो ये भी एक सिनेरियो साथ में लेकर चलना होगा. Of course, the notification has yet to come into the picture. That's it. My question to you is, sir, when we deduct TDS on GST? Not GST. Not on GST. This is 2% of the value of taxable supply. This is the wording of the law. The TDS of income tax or TDS of GST? This discussion is confined to GST only. GST. So we are discussing about when this. We say TDS of GST, when we get into this deduction, yes, then it also increases a level of compliance, because GSTS 7 now needs to be filed every month. Yes. So one has to pay. That means while making a payment, the buyer has to make a deduction of 2% of the value. Say 100 rupees the value of goods. 2 rupees आपको रोक के रखना होगा, और 2 रुपये आपको next month की 10th को आपको पे करना होगा. Say January है तो 10th of February, on or before 10th of February, you have to make the payment. You have to furnish that increases the compliance, because as of now I was showing my sales. Yes. But now I also have to disclose my purchases. Yes. So that's an added compliance burden on the manufacturer. Yes, actually section 51 TDS का जो provision लाया गया था वो B2C generally इस सिनेरियो के लिए लाया गया था. हालांकि लॉ में ऐसा लिखा नहीं है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़, इन लोगों को जब कोई सप्लाई कर रहा है तो ऐसे केस में उसको TDS इंश्योर करना होता है, राइट. सो एक्चुअल इंटेंट वही था कि कहीं टैक्स इवेजन ना हो जाए, तो इंटेंट वो था. अब वो प्राइवेट पार्टीज़ को भी इस सिनेरियो में लेकर आ रहे हैं ऐसे. हेलो सर, द मोमेंट यू फर्निश GSTR 7 वो आपके कैश लेजर में दिखेगा. Sir, obviously. I request we keep the questions for the end, please. Obviously. TDS certificate is generated. Yes, the technology is imbibed into this, so that GST network itself shall generate the TDS certificate the moment you furnish GSTR 7 for this. So आपके कैश लेजर में आएगा, वो कोई ITC का पार्ट नहीं होगा, जैसा अभी सोलंकी सर ने हमको बताया. Yes. वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा. जब आपका फर्स्ट पार्टी पे करेगा तो आपके जो सेकंड पार्टी का ऑटोमेटिक अकाउंट में आ जाएगा वो आपका. तो दैट विल बी ऑटोमेटिक सिस्टम. ये जो GST 2% है, GST TDS 2% है, ये वैल्यू के ऊपर 2% है. यस, ये वैल्यू के ऊपर है 2%, और ये RCM की तरह यूज हो रहा है. अगर आप लोगों को याद हो तो स्टील एक्ट 23 में हमारे लोगों की डिमांड क्या थी, क्या या तो इसका टैक्स कम कर दिया जाए स्क्रैप के ऊपर, या RCM लागू कर दिया जाए. हमने ये भी डिमांड रखी थी कि स्क्रैप पे 2% अगर GST कर देते हैं तो ये जो फोर्ज बिलिंग का काम है वो रुकेगा. सरकार ने जो 1 अगस्त को हम फाइनेंस मिनिस्ट्री से मीटिंग की थी और हमने डिस्कस किया था, जिसके कारण ये लागू हुआ. आइफा की मीटिंग 1 अगस्त को हुई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्टर साहब के साथ डायरेक्ट, और उन्होंने ये चीज़ को समझा था. अब उन्होंने सारा प्रोविज़न कर दिया है हमारा, जहाँ तक मैं समझता हूँ. जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आता है, जो हमारे को बातचीत हुई है उसके हिसाब से उन्होंने जो फोर्थ बिल देने वाले हैं उनका 2% ट्रांजैक्शन के ऊपर, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर TDS के रूप में सरकार अपने पास रख रही है, जिससे क्या वो इतना ज़्यादा इसमें बिजनेस है. एक तरफ हम कहते हैं कि भाई एक ट्रक की कीमत ही बहुत है, और उसके हिसाब से अगर वो 2% जमा कराता हुआ चलेगा तो वो कहीं नहीं भाग पाएगा. सरकार का इसमें ये सोचना है. दूसरा, जैसा कि आपने कहा कैश के अंदर ट्रांजैक्शन जो है 2.5 लाख तक की, जहाँ तक मैं समझता हूँ क्लियर है, 10 या 20 हज़ार तक की नहीं है.
और वो डिमांड मानी नहीं जा सकती, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट कहीं पे भी मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, आज आप सब्जी या कुछ भी छोटी छोटी आइटम खरीदते हैं तो UPI और इससे पेमेंटें कर रहे हैं, तो कहते हैं इसलिए कैश के लिए हम नहीं कह रहे। अगर वो, क्योंकि गवर्नमेंट का इससे जो उद्देश्य ये हुआ है कि 20 लाख तक की कोई एक ट्रेडर टर्नओवर कर रहा है तो वो GST के अंदर रजिस्ट्रेशन उसे करानी पड़ेगी। और हम यही चाहते हैं कि सारी स्क्रैप की सेल परचेज जो है नंबर 1 में आए और रजिस्ट्रेशन कराए, और वो रजिस्टर जो कराएगा स्क्रैप डीलर, अगर वो अपनी सेल के ऊपर 2% GST जमा कराएगा, क्योंकि वो बिल उसने काटा 18% का, हमने उसे 16% देना है, हमने उसे 16% देना है, 18% नहीं देना, तो वो 2% उसका जब कटता जाएगा तो वो भागने वाला GST का ट्रेडर नहीं होगा। ये काफ़ी सोच विचार के ये बना है, और जब तक पूरा कानून इसका नहीं आता हो सकता है कि अभी उसमें कोई कमी निकले। तो मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार ने कम से कम ये तो माना एक समस्या है और उसका हल करने का प्रयास किया। अब उसके अंदर कोई कमी निकलेगी तो वो कमी भी दूर करने के लिए सरकार बाध्य होगी। Wonderful. Well said, sir. Well said. Well said.